11th chapter, and the name of the chapter is Lord Krishna's entrance into Dwarka, and we are reading from verse number 25. नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोशसां न वृत्त्यं पन्ति हि दृश्यः श्रेयो घामाङ्गमच्युतम्. Translation. Srila Prabhupada ki jai. The inhabitants of Dwaraka were regularly accustomed to look upon the reservoir of all beauty, infallible Lord, yet they were never satiated. Such an amazing word, satiated. Not being satisfied at all. Anybody wants to read the purport? Did Prabhu. Thank you. When the ladies of the city of Dwarka got up on the roof of their place, they never thought that they had previously many times seen the beautiful body of the infallible Lord. This indicates that they had no satiation in desiring to see the Lord. Anything material seen for a number of times ultimately becomes unattractive by the law of satiation. The law of satiation acts materially, but there is no scope for it in the spiritual realm. The word infallible is the word infallible is significant here because although the Lord has merciful descendants on the earth, he is still infallible. The living entities are fallible because when they come in contact with the material world, they lack their spiritual identity, and thus the body materially obtained becomes subject to birth, growth, transformation, situation, decoration, and annihilation under the laws of nature. The Lord's body is not like that. He descends as he is and is never under the laws of material modes. His body is the source of everything that be, the reservoir of all beauties beyond our experience. No one, therefore, is satiated by seeing the transcendental body of the Lord because there are always manifestations of newer and newer beauties. The transcendental name from qualities and entourage, etc., are all spiritual manifestations, and there is no satiation in chanting the holy name of the Lord. There is no satiation in discussing the qualities of the Lord, and there is no limitation of the entourage of the Lord. He is the source of all and is limitless. Hare Krishna. Beautiful. What an amazing purport, huh? If you think about it, Srila Prabhupada, like these verses that we are reading, since last probably a month or so, incredible. Like we actually cannot actually define and design anything that can satisfy the way Srila Prabhupada introduces anything. For example, in this हो क्या रहा है अभी द्वारका लीला कृष्णा वापस आए हैं ना द्वारका वापस और उनको देख के जो पब्लिक है दे वेंट मैड दे आर इन एक्सटेसी है ना अब आप सोचो इफ somebody इज लुकिंग एट समवन एवरी सिंगल डे है ना तो कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं है ना पीपल गेट सिक ऑफ देयर वाइव्स और हस्बैंड्स समटाइम्स they get sick of for example there is a very famous saying that familiarity breeds contempt जब आप किसी के बहुत क्लोज आ जाते हो ना सबसे पहले तो उनके डिफेक्ट दिखने लग जाते हैं आपको but Krishna is opposite because he's a Lord. He doesn't have any defects, and that's why जो द्वारकावासी हैं दे नेवर हैड इनफ ऑफ कृष्णा है ना सो ये जो वर्स है दिस हाईलाइट्स द स्पिरिचुअल रियलिटी द लॉर्ड्स ब्यूटी एंड प्रेजेंस आर एवर फ्रेश है ना
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग टू, आई कांट रिमेम्बर मैं किससे बात कर रहा था, but I was talking to someone and I said to them, you know, I remember we used to sing that song. I don't know, I think you guys may be a little bit more too young for those songs, but there was a song, um, Hawa Hawa E Hawa Khushbu Luta De. I don't know, you remember? So I that, that Prabhu. you We remember, have yeah? heard Yes, Prabhu, Prabhu yes. heard. Goodness. प्रभा प्रभु आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हमको बहुत छोटा। So anyway, that song was extremely famous. जहाँ जाओ शादी में, यहाँ पर रात होली के फंक्शन पे, हवा हवा, and everybody was singing and dancing. And then where did the song go? Disappeared. Because how can you, how long can you listen to Hawa Hawa Hai Hawa? You can't, No matter what kind of songs, unless they are based on a classical rhythm, you cannot keep singing them. लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा है where people have been saying just 16 words for as long as we can remember, but people are still doing it. There are people who are doing it 40 years, 50 years, they're chanting. एक बाबा जी है, मिले थे हमें वृंदावन में, 40 नहीं, 38 ईयर्स से ही इज डूइंग परिक्रमा, है ना। 38 ईयर से उन्होंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ गोवर्धन परिक्रमा करी है, ठीक है। नथिंग, ही डजंट डू एनीथिंग, ही जस्ट डू परिक्रमा। जहां पर परिक्रमा खत्म, जब भी अंधेरा हो जाता है वहां सो जाते हैं, देन सुबह उठ के वापस परिक्रमा शुरू कर देते हैं। ऑल ही डज इज चैंटिंग। कोई खाना दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रह जाते हैं। नाउ इमेजिन हाउ फेमिलियर इज दैट गाय विद हरे कृष्णा महामंत्र। हम तो कितने सारे लोगों से बात करते हैं, कभी क्रिकेट की बात कर ली, कभी इसकी बात कर ली। हमारे लिए तो फिर जब हम हरे कृष्णा सुबह लेके बैठते हैं, तो जब भी लेके बैठते हैं हमारे लिए वो फ्रेश होता है, क्योंकि हमने पूरे दिन रटा ही नहीं है भगवान का नाम। तो हम लोगों के लिए वो तो नया नया है, देन वी आर लाइक ओके। लेकिन दिस गाय हैज बीन चैंटिंग कॉन्स्टेंटली फॉर 38 years, एंड नाउ ही इज सेइंग every day I am getting more ecstasy. How is it possible? Because it is that holy name is first of all non-different from Krishna, and second, holy name is because God is all attractive. Holy name is all attractive. Now, so this is so now we this is the introduction of this verse. Now, the theme, इस पूरे उसकी थीम क्या है, ठीक है। जो वर्ड है इसमें, एक सेकंड में आपको बताता हूँ इसमें कौन सा वर्ड है। न तृप्यंती, कहाँ गया वो, न तृप्यंती, और हाँ, न वित्रपंती। एक सेकंड में वो बताता, शेयर करता हूँ। न वित्रप्यंती, ये जो शब्द है न वित्रप्यंती, इट एक्चुअली मीन्स, तृप्यंती का मतलब होता है सेशिएटेड, है ना, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड। न वित्रप्यंती का मतलब होता है कि नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और किस चीज में? दृशः, भगवान को देखने से, है ना। दिस इज, इमेजिन हाउ क्रेजी दिस इज, है ना। इन द मटेरियल वर्ल्ड रेपिटेशन क्या होता है, हमेशा बोर्डम बन जाता है। इवन फॉर एग्जाम्पल, देर इज a थिंग दैट आई डू विद माई सन, and I want him to remember this. Somebody told me it actually works. So I go and tell him, hey, Naran, I forgot to tell you something. And he said, what? I said, oh, I forgot to tell you that I love you. So काफी दिन हो गए। Then now he says, when I said, नारायण बेटा, I forgot to tell you something, कहता you love me। मैंने कहा आपको कैसे पता? Because you tell me every day, है ना। तो मैं उसको पूछा, तो मैंने एक बार उसको पूछा, मैंने कहा क्या ना, should I stop saying it? Then he looked at me, he goes no, है ना। So तो लेकिन कई बार वो बहुत वो हो जाता है, अनॉय हो जाता है। जैसे वो काम कर रहा है कुछ, मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ, बेटा मैं आपको कुछ बताना भूल गया। तो वो मेरे को ऐसे देखता है कि यार मैं कितना बोरिंग आदमी हूँ यार, मेरे को कुछ और समझ में नहीं आता है क्या। बिकॉज एनी थिंग दैट वी रिपीट विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, पीपल विल गेट बोर्ड। और 7 साल का बच्चा है, अब वो बोर हो सकता है तो कोई भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट गेट बोर्ड ऑफ। बोर्डम हो जाता है, डिटैचमेंट भी हो जाता है। आई रिमेंबर एंड वी वर टॉकिंग, मे एंड रॉक्सी वी वर टॉकिंग, जब हम लोग व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग आउट, हम लोग फोन पे लगे रहते थे।
एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, 2 घंटा। उस वक्त क्या होता था, दिस इज 2006, एंड इट वाज मोबाइल फोन पे, अनलिमिटेड कॉल्स नहीं होते थे पहले, है ना, यू हैव टू पे फॉर ईच कॉल। सो समटाइम्स मेरा ना 300 400 $400 महीने का बिल आता था फोन का। लेकिन फिर भी उससे रोज 1 घंटा बात करना ऐसे होता ही था। अभी वो मुझे फोन करती है, मैं कहता हूँ अर्जेंट है क्या, फर्स्ट थिंग, इज इट अर्जेंट, नो, देन आई कॉल यू बैक, व्हाई, व्हाट इज इट, familiarity breeds contempt. But sometimes we have to remember that just because I have access to my wife, that does not mean कि मैं उसकी केयर करना बंद कर दूं। अब मुझे पता है वो कहीं नहीं जाने वाली है, शादी हो गई है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग। आई नीड टू मेक श्योर दैट आई गिव हर उतना जितना मैं पहले उसको टाइम देता था, उतना नहीं भी दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड मेक टाइम डिलिबरेटली टू स्पेंड विद हर, स्पेंड टाइम विद हर, बिकॉज द वे डिटैचमेंट आ गया अभी, है ना। ठीक है यार, वाइफ अगर, somebody was telling me the wife is going to India, तो द वे ही was telling me was this, मैंने बोला कि व्हाट्स हैपनिंग, एनीथिंग न्यू, बोले वाइफ जा रही है इंडिया। मैंने कहा इतनी जोर से बोल, क्यों बोल रहा है तू, हाँ, धीरे से बोल। तो क्या, जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो है नहीं अभी यहाँ पर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आई यू हैप्पी दैट शी इज़ गोइंग। तो मुझे कहता है यार पक गया हूँ मैं, है ना। तो मैंने उसको बोला किस बात से पक गया है? बोला यार बस ऐसे ही ना, कि अपने हिसाब से मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। मैंने कहा जब शादी करी थी तब भी यही था, शादी से पहले भी तू अपने मन का कुछ कर नहीं पाता था, तब तो तूने कभी कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता है, लव मैरिज हुई ना मेरे सामने हुई। मैंने कहा तब तो तूने कुछ नहीं बोला, और अब तू बोल रहा है कि यार जो अपनी मर्जी का नहीं कर पाता, दिस इज बॉदरिंग यू, क्यों? बिकॉज इट इज मटीरियल। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इज मटीरियल, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्पिरिचुअल भी होता है, अगर हम लोग आपस में, इफ वी ट्रीट ईच अदर एज द गिफ्ट ऑफ लॉर्ड, देन इट बिकम स्पिरिचुअल। बट अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी मटीरियल, क्योंकि इट इज ओनली, शादी क्या है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यू बैक, you're cook, you are doing one part of things, I love you only because you love me. That's not love. Love means I really don't care whether you love me or not, I love you. जैसे शिष्टाष्टकम का जो लास्ट वर्स है, वे चैतन्य महाप्रभु सेज, आश्लिष्य वा पादरताम पिनाशतु माम, अदृश्नान मर्म हताम हताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly, or by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me, because he is completely free to do anything or everything, because he is my worshipful Lord unconditionally. That is love. I don't care भगवान आप मुझे प्यार करते हो नहीं करते हो, मेरे लिए कुछ करते हो नहीं करते हो, मुझे गले लगाते हो लात मार देते हो, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज all I know is I love you, and that is true love. सो हस्बैंड वाइफ में ऐसा लव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उस लेवल का इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज हस्बैंड वाइफ में देर इज एक्सपेक्टेशंस, है ना, अगर मैंने ये करा है। लेकिन जो लव होता है ना, लव शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। इफ यू लव समवन देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हमारे पास है, दैट मीन्स वी आर स्टिल कंडीशनड। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो आई हैव एन एक्सपेक्टेशन कि मेरा बॉस मुझे पे करेगा। आई नीड टू हैव दैट एक्सपेक्टेशन, नहीं होगी तो वो नहीं करेगा, आई नीड टू हैव दैट एक्सपेक्टेशन। बट एट द सेम टाइम, द रीजन वाई ऑल these relationships are different, because any relationship devoid of Krishna is material. Husband wife का relationship, if you want to make it spiritual, remember that Krishna has given that thing as a gift to you for you to progress in your bhakti. If you treat your wife or your husband like that, only then that relationship is spiritual, only then there will be no boredom. अगर अभी है boredom ना, वो boredom सिर्फ इसलिए है because it's not spiritual, है ना। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, वैसे वैसे वो ज्यादा प्रेम हो जाता है ना। हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स देर इज ए स्पिरिचुअल एलिमेंट इन देयर, है ना। और दूसरा, इसमें दूसरा जो शब्द बड़ा अच्छा है वो है,
एक सेकंड, मैंने नोट्स में क्या लिखा है। हाँ ऋचा माता जी, आपका क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। पर वो थोड़ा फनी क्वेश्चन है। आपने कहा कि भगवान जो है हम लोग को, हमें एज अ गिफ्ट समझना चाहिए ना अपने पार्टनर को। हाँ तो हाँ। प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे माइंड में बस ऐसे ही आया कि मतलब सब सब तो भक्ति नहीं कर रहे होते, तो लॉर्ड कृष्णा जब हमें पार्टनर साइन करते हैं तो इट इज ऑलवेज अ गिफ्ट, चाहे वेदर और नॉट वी आर डूइंग भक्ति, वी आर डिवोटी, वी आर नॉन डिवोटी, इट इज अ गिफ्ट फॉर अस, वी ऑल आर गिफ्ट फॉर ईच अदर। क्योंकि या कई लोग तो डिवोशनल प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे ना, तो जैसे आप हाँ, कह रहे हो कि वो हमें डिवोशन में हेल्प करते हैं, है ना, वेरी इट इज अ बेस्ट पार्टनर फॉर अस टू नाइस। हेल्प अस इन टू प्रोग्रेस इन भक्ति। तो अगर जो भक्ति कर ही नहीं रहे, आर उनके दे लिए क्या? ऑल्सो फॉर ईच अदर? हाँ मैं बताता हूँ एक्चुअली। दे जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, उनके लिए जो उनके पार्टनर्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन देयर ओन कर्मा, है ना। सो कार्मिक रिएक्शन है। सपोज अभी क्या हुआ, देर इज देर इज ए न्यूज दैट आई वाज रीडिंग, वेयर दिस वाइफ husband went to the police, real story by the way, na, in Australia. Husband went to the police and said कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत मारा। और किस लिए मारा, क्योंकि मैंने ना उसका उसके लिए जो खाना बनाया था ना, उसमें मैंने नमक नहीं डाला, तो उसने मुझे बहुत मारा। तो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करा, तो उनको पता चला कि हाँ हाँ बात वही थी, क्योंकि वाइफ ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, बोले इतने दिनों से मैं इसको समझा रही हूँ कि नमक ढंग से डाला कर, नमक ढंग से डाला कर, बार बार मुझे लेना पड़ता है, तो मैंने इसको मारा। तो ऑब्वियसली केस वेस हुआ, जो भी सजा वजा होनी थी वो हुई। एंड आई वॉज रीडिंग दैट एंड देन आई वॉज थिंकिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर, इज दिस कर्मा? दिस गाय वुड हैव हिट हिज वाइफ इन द प्रीवियस लाइफ, उस और फिर वो जो वो लास्ट लाइफ में ही वॉज ए वाइफ, है ना। एंड वो हस्बैंड था, तो इसने वाइफ बन के अपने हस्बैंड को मारा होगा, तो अब वो वाइफ बन के आई है और अपने हस्बैंड को मार रही है। सो यूजुअली इन एनी केस, डिवोटी और नॉन डिवोटी, दोनों के केस में क्या होता है, वी द पार्टनर्स दैट वी हैव, द बॉस दैट वी हैव, kids that we have, parents that we have, सास ससुर that we have, or anyone that is close to us, all of them are actually there to serve us our karma. हमारे खुद के कर्म को काटने के लिए वो आते हैं, है ना। वेदर वी आर डिवोटी और नॉन डिवोटी, द डिफरेंस हैपेंस हेयर इन व्हेन वी आर डिवोटी, krishna uses those people around us to increase our bhakti. For non-devotees, Krishna organizes all of this to give you karma so that you can get rid of that karma and get rid of that debt जो आपके पास karmic debt है, so that you can go past and go towards bhakti. You have more chances because आपके पाप कर्म कम हो रहे हैं, that means आपकी शुद्धता बढ़ रही है, इसका मतलब you will be more inclined for bhakti. बट जो नॉन डिवोटीज होते हैं, दे आर प्योरली डीलिंग विद देयर कर्मा। बट डिवोटीज, कृष्णा यूजेस ऑल द पीपल अराउंड देम टू गिव यू, to make sure all of these people, you will get treated in a way that you become a better person, you become a better devotee, you become a better father, mother or something. And I'm not talking about, I'm talking about कई बार हमें लगता है कि नहीं यार, it's not possible, like ब्रजेश प्रभु आपको क्या पता what I'm dealing with. Actually, everybody, there is no husband and wife, they have no problems. And उसका एक उसमें उसका एक पॉजिटिव वे है। पॉजिटिव ये है कि when there are no problems, there are two reasons for no problems. One, somebody is not expressing it. प्रॉब्लम तो है ही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो कारपेटिंग नीचे डाले जा रहे हैं, एक दिन फूटेगा फिर वो। दूसरा क्या रीजन होता है कि दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दे विल नेवर ग्रो एज ए पर्सन। आई रिपीट, इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो इश्यूज, दैट मीन्स दे आर कंफर्टेबल। और हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या पढ़ा है, देर इज नो ग्रोथ व्हेन यू आर कंफर्टेबल, so you have to get out of your comfort zone to grow. So now what happens is we don't grow. If we don't grow, then what is the purpose of life? Purpose of life ये तो नहीं है कि आप फर्स्ट स्टैंड में पढ़ने गए and then you stay in the first standard for the rest of your life. No, you go to second, then you go to third, then you go to, and then you graduate and all those sort of things. So you're constantly growing, and all this growth only happens when you put yourself into a situation which is not 100% comfortable. So people around us, है ना, कभी हम किसी से खरीदते बेचते भी हैं चीजें,
इफ वी हैव ए वेरी डिफिकल्ट पर्सन जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं, दैट डिफिकल्ट पर्सन इज कमिंग देयर to repay the debt that you have, karmic debt that you had. And once that debt is paid, that means once you have suffered from that person, you should celebrate. जैसे हम लोग अपना, अगर अगर आज मैं मितुल प्रभु को बोलूं, मितुल प्रभु अगर आज उनका 1 महीने में उनका सारा का सारा मॉर्गेज खत्म हो रहा है, तो मितुल प्रभु विल बी डांसिंग कि यार मेरा, क्योंकि क्या हो रहा है, डेट खत्म हो रहा है, तो वी ऑल इंजॉय। लेकिन जब हमें कोई आके थप्पड़ मार के जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं डांस करते? यार मेरा कार्मिक डेट था, अब वो पूरा हो गया, मैंने पे कर दिया, बल्ले बल्ले, कोई नहीं करते। लेकिन दिस इज ट्रू, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी, so that the adverse situation that we have in our life, we have another way of looking at that issue, which is the right way, spiritual way. And that's why more and more we become spiritually inclined, more and more depth we will have as a person. Because when we look at our problems, we will not look at who should I blame for it right now. अरे यार प्रमोशन नहीं हो रहा है, पता है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा बॉस खड़ूस है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो मेरा कॉलीग है वो उसकी चापलूसी करता रहता है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सारा है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्ट हैं सब लोग। ऑल ऑफ दोज एक्सक्यूजेस वी आर लुकिंग फॉर पॉइंटिंग फिंगर्स। प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मेरे कर्म ऐसे नहीं थे कि मुझे प्रमोशन मिले। But what should I do as a devotee? I should keep doing my best, because if I'm not getting a promotion, what does that mean? My karma is getting paid. But ऐसा नहीं कि अब ठीक है मेरे को काम ही नहीं करना है, मतलब प्रमोशन तो होगा नहीं, तो जितना मिनिमम है उतना करो, वो नहीं। यू डू योर बेस्ट, only then the karmic reaction will be gone. So if somebody is making you angry, and if you're overwhelmed and angry, and if you can not react and respond, that means you have paid off the massive debt and you should celebrate, if that makes sense. Richa Mataji, is that okay? Yes, Prabhuji, extremely beautiful. Thank you so much. No worries. Prabhuji, Thank you for sorry, asking. I need to clarify something Please. adding to this. Sometimes, like such difficult situations or people in our lives, uh, like, they push you to certain limits Hmm. and you feel so exhausted by the situation that you have that inability to continue. Like, Hmm. I don't have, like, I can't explain. Like, I know what you mean. I know what you mean. तो उस situation में how do you deal? Like, how do you get the courage to come back Yeah. and sustain in that situation? Yes. Like, Very good. Very good question. क्योंकि this is very practical. I think the reason is because कई बार ऐसा होता है कि our capacity is our, like, what capacity do we have? We have a physical capacity, we have mental capacity, है ना? कई बार हम लोग फिजिकली टूट जाते हैं कि यार दिस इज इट, आई कांट डू एनी मोर। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग 4 भाई 1 बहन थे, तो 4 भाई हम लोग घर इतना गंदा रखते थे कि मम्मी बोलती थी अब मेरे से नहीं हो रहा साफ, दैट्स इट। लाइक कई बार वो बेलन वेलन से भी मार देती थी हमें, वो उसमें भी थक जाती थी वो। और फिर वो कहती थी अब मैं क्या करूँ, वो चुपचाप बैठ जाती थी कि अब, और फिर कई कभी रोने भी लग जाती थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि डैडी आर्मी में थे, बाहर रहते थे, तो मम्मी अकेली थी। तो कई बार ऐसे ओवरवेलमिंग चीजें आती है 2 तरीके से, एक तो फिजिकली यू गेट टायर्ड समटाइम्स, कई बार यू गेट मेंटली टायर्ड। बोथ ऑफ देम, बोथ द सिनेरियोज आर इक्वली क्या बोलते हैं, पेनफुल। हाउएवर मेंटल इज अ लिटिल बिट मोर पेनफुल देन फिजिकल। अगर हम उस सिचुएशन में हैं, देर आर 2 ways टू लुक एट इट, है ना? चैतन्य चरण प्रभु का एक लेक्चर में सुन रहा था। चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि we need to, the the way we need to react or respond to a situation is based on कि इसमें मैं कितना झेल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल कह दिया, मैं ट्रेन में, सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको 3 स्टेशन जाना है, मुंबई की ट्रेन, लोकल ट्रेन में हो, खचाखच भरी हुई है, सांस लेने की भी जगह नहीं है, लेकिन आपके बाजू में एक आदमी है ना, वो आपको कह रहा है कि आपको गाली दे रहा है, गाली देनी शुरू करी, बाजू में ही खड़ा है वो, ठीक है, और गालियां दे रहा है आपको। तो आपको 3 स्टेशन बाद उतरना है, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, इतना इंपॉर्टेंट कि इट इज योर लाइफ एंड डेथ मैटर काइंड ऑफ, इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन जस्ट लूज एवरीथिंग और यू कैन गेन एवरीथिंग। तो वो आपको गाली दे रहा है और कह रहा है कि ये वाले स्टेशन पे, फिर आपको बोल रहा है कि अच्छा तू तू डर गया मेरे से, अगर नहीं डरता तो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर, मैं तेरे को, और हो जाए हाथों हाथ। और वो छोटा, बिल्कुल
छोटा बंदा है और आप बिल्कुल तगड़े हो, है ना, आपको पता है उसको मैं फूंक मारूंगा तो गिर जाएगा, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, ऐसे करके बोले यार ठीक है बोल, तू बोल बोल, एक बार मेरा इंटरव्यू हो जाने दे, उसके बाद कभी मिल जाना ट्रेन में, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ना तो मेरे पास टाइम है, ना ही तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इतना। तो क्या करना है, देर आर सर्टन सर्टन केसेस जहां पर वी जस्ट हैव टू नेग्लेक्ट इट, है ना, बट फिर उन्होंने बताया लेकिन अगर ये बंदा, ये छोटा सा बंदा, अगर आपको चाकू ऐसे लगा रहा है और आपको धीरे धीरे करके गेट की तरफ बोल रहा है कि मैं तेरे को गेट से धक्का दे दूंगा, है ना, देन व्हाट डू यू हैव टू डू यू स्टिल नेग्लेक्ट हिम? नो, देन यू टर्न अराउंड एंड यू फाइट, बिकॉज व्हाट इज द पर्पस, आप ट्रेन में किस लिए चढ़े थे, बिकॉज यू हैड एन इंटरव्यू। जब तक वो आदमी आपके मेन गोल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तब तक यू डोंट रिएक्ट। As soon as he is impacting the real goal of your real goal, then you have to react, because now अगर आपने react नहीं करा, अगर आपने respond नहीं करा, what will happen is it this person will destroy your ultimate goal जहां पर आपको जाना है। अगर वो ट्रेन से कूद रहा है तब then you turn around and you fight with him, until then you don't। So sometimes in life people will push us to an extent जहां पर we don't have any until you can manage it, because your हमारा, like if you ask me, we are all spiritual people, हमारा एम क्या है इस लाइफ का, हमारा एम रुपया पैसा नाम कमाना नहीं है, हमारा एम है भगवत धाम जाना, है ना, अपने आप को प्योरीफाई करना, भगवान के पास जाना, दैट्स हमारा गेम ये है। लेकिन कोई हमें इस गेम से गिराने की कोशिश कर रहा है, देन वी हैव टू रिटेलिएट, until then we have to tolerate, क्योंकि टॉलरेट भी कैसे करना है, इट इज माई कर्मा, आई नीड टू डील विद इट। नाउ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वी हैव नो आइडिया, समटाइम्स हम लोगों से डील भी नहीं होता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि यार हमें ये भी पता है कि ये मेरा कार्मिक रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है नाउ आई कांट डू एनी मोर, देन व्हाट डू यू टेक शेल्टर। समटाइम्स sitting in front of Krishna will work, sometimes sitting with a devotee will work, you know, कई बार ऐसा होता है यू लुकिंग एट द डीटीज एंड यू आर सो एंग्री एंड यू सेइंग यार कृष्णा क्या कर रहे हो यार मेरी लाइफ में आप, मतलब ठीक है यार आई एग्री, मस्ट हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग, लेकिन आपको पता है कि राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट और आप मुझे वापस उस गंदगी में खींचना चाहते हो, प्लीज हेल्प मी यार, क्या कर रहे हो आप? एंड कृष्णा इज सिटिंग देयर लाइक दिस, नॉट सेइंग एनीथिंग, एंड देन यू गो माय गुडनेस व्हाट डू डू, देन आई कॉल मित्तल प्रभु यार टाइम है आपके पास? हाँ बोलो, मैं आ सकता हूँ, आप आ जाओ। वहाँ गए, मितुल प्रभु यार ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड मितुल प्रभु कह रहे हैं इधर आओ ब्रिजेश प्रभु, गिव मी, आई गिव यू हग। मितुल प्रभु ने हग करा एंड मितुल प्रभु ने बोला ब्रिजेश प्रभु ठीक है सब ठीक हो जाएगा, आई प्रे फॉर यू। एंड सडनली क्योंकि मैंने बोल दिया है समबडी हैज रेसिप्रोकेटेड विद मी, कृष्णा तो वहाँ ऐसे ही खड़े थे बांसुरी लेके, हिले ही नहीं हो, लेकिन मितुल प्रभु ने मुझे गले लगा लिया, मितुल प्रभु ने मेरी बातें भी सुनी और हाँ ना भी बोला, और मुझे ये भी बोला कि ब्रिजेश प्रभु आई विल प्रे फॉर यू एंड आई नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड ट्रस्ट मी इट विल गो, ये जो टाइम है ये भी चला जाएगा, दिस टू शैल पास, है ना। और देन मैं कहा अच्छा ठीक है मिस प्रभु थैंक यू वेरी मच। सो सम टाइम इन आवर लाइफ्स व्हेन वी गेट रियली 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 डिमोटिवेटेड, लुक फॉर एन आश्रय, आश्रय, है ना, आश्रय भगवान का आश्रय, डिवोटीज का आश्रय, एंड that is why it is very very important for us to have some people in our lives जिनको मैं फ़ोन करके हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि प्रभु जी आई स्टब्ड अप, प्लीज़ हेल्प मी, है ना, वी नीड टू हैव इट। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है देन लुक फॉर दैट पर्सन, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स द ओनली सोलेस दैट यू विल हैव इज द आश्रय ऑफ डिवोटी, है ना, सीनियर डिवोटीज। So we should always have someone. So in terms of your answer Mataji, there are some times when we let it go, जितना हमसे सहन हो रहा है, अगर वो हमारी जो मेन गोल है कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तब तक वी टॉलरेट इट एज आर कर्मा। if it's if it's not doing anything then we do so first वो टॉलरेट, अगर हमें जरूरत से बाहर जा रहा है देन वी फाइट, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है देन वी टेक आश्रय, है ना।
बट एक्चुअली आश्रय जो है ना, भगवान का आश्रय पूरे समय रहना चाहिए, भले ही हम किसी भी सिचुएशन में, वी शुड ऑलवेज थिंक से कृष्णा यू हेल्प मी, कृष्णा यू हेल्प मी। बट मेन जो है, दिस इज द थिंग। रुचिता माता जी, डज इट मेक सेंस और? Yes, जी। I think ये सब पता होता है, but you keep forgetting it and you don't know यस, how to cope with that situation. yeah, ना, it can be hard, and कई बार क्या होता है, there is no custom solution for anything, and that's why expressing yourself without any, क्या बोलते हैं, पर्दे के, you need to have someone जिससे हमें कुछ छुपाना नहीं पड़े, we can just be who we are, so that that person can fully acknowledge our emotions। एक बार emotions निकल जाते हैं हमारे बाहर, then we feel a little bit better, and then that person should be able to give us the right advice, you know। ये नहीं कि आजा, let's go to, ये बार बाजू में खुला है नया नया, let's, तेरे सारे खत्म, आज ही आ। सब दूसरे दो। So कहते हैं ना, there was this guy who was telling me, क्या है उसका एक शेर था, ना, he was asking me कि ब्रिजेश, how do you deal with the कभी कुछ गुस्सा आ जाता है, मैं तो आई ड्रिंक समथिंग एंड आई एम ओके। तो मैंने कहा, आर यू रियली ओके? तो कहता, हाँ। मैंने कहा, डोंट से दैट बिकॉज आई हैव डन दैट, आई हैव नेवर बीन ओके। अब व्हाट डू यू डू? कहता, यार एक्चुअली आई एम नेवर ओके। वो उस समय के लिए मैं भूल जाता हूँ, इट्स लाइक फॉर दैट मोमेंट, वो शुतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच, उसकी जैसे मिट्टी में ऐसे घुसा लिया अंदर, वैसा हो जाता है। बट यू आर एक्चुअली नॉट आउट ऑफ डेंजर, यू जस्ट क्लोजिंग योर आइज। तो मुझे बोलता, and then there was a share that I used to say, पहले when I used to be with him, like on all Fridays, there was a share, अब तो उतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, है ना? So I was he told me, Bridges, do you remember your share? So, so I was thinking my head, my goodness, how many things I have tried, how many things I have tried in order to be happy. Never ever, we will never be happy, guaranteed यार। कृष्णा जिन्होंने बनाया, he is telling you, दुखालय अशाश्वतम, then where are we looking for that happiness? Why are we looking for happiness? You know what we should look for? We should look for um, we should look for that point where we are not looking for pleasure, we are not looking for satisfaction, we are looking for um, a point where we know that no matter what I'm feeling right now, I know that I'm doing the right thing। I really हम्म। don't care what I'm feeling right now, but I am doing the right thing। हमें उस जगह पहुंचना है ना, जहां पर हम वी आर 100% श्योर, 100% कॉन्फिडेंट कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स। ये वर्ड वाली बात नहीं है कि यार किसी ने बोल दिया, अरे यार तुम यहाँ आ जाओ, एक बाबा के पास चले जाओ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो बाबा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल बाबा, दिस इज रियल, दिस थिंग वर्क्स। Krishna consciousness works on every level, it works। The only difference is sometimes we can feel it, sometimes we can't, but just because we can't feel it doesn't mean it's not happening। This earth is moving at 16,000 miles per second। Do we feel it? No. But does it mean it's not happening? No, it's happening। Earth is moving on that speed. But we don't know it because we don't feel it। एंड यही कंडीशनिंग जो होती है ना, हमारी जो कंडीशनिंग होती है, दैट्स व्हाट इट इज। रिचा माता जी, क्वेश्चन आपका? हाँ प्रभु, my question are, you said we should always do the right thing, so that should not feel, you know um, painful or whatever, but doing the right thing is the most painful thing na. नहीं नहीं, व्हेन आई सेड इट शुड नॉट फील पेनफुल, आपको डजंट मैटर हाउ मच पेन आई एम इन, है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू रिप समवन ऑफ, I'm not trying to create hell, someone's life hell. I am not doing anything which is which is putting someone in a position where they are they are taking undue advantage of। If we just have to get to that stage, not even self righteousness की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, I'm just talking about we need to get to a place where I know for a fact that जिस पाथ पे मैं हूं ना, that is the right path। I'm talking about in general, in not incident।
And general, I'm talking about general. For example, I have a goal. I have a material goal, I have spiritual goal, I have other goals. But when I'm trying to get to that goal, I need to know that that goal is worth pursuing. जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर प्लेजर, दिस प्लेस इज नॉट फॉर हैप्पीनेस, यू विल नेवर गेट हैप्पीनेस ऑन दिस प्लेस, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, देर इज नथिंग यू कैन डू, देर इज एब्सोल्युटली नथिंग, ये देर इज विल बी नो प्रगति, आपकी कोई प्रगति नहीं मिलेगी आपकी इस पथ पर। किस वाले पथ पर? भक्ति के मार्ग पे आपको कोई प्रगति नहीं मिलेगी जब तक आप 100% कन्विंस्ड हो कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर हैप्पीनेस। Stop looking for happiness. Look for something else. What is that thing? Look for ultimate satisfaction. Don't look for happiness. Don't look for temporary happiness or temporary satisfaction. Look for ultimate satisfaction. And nobody will give you that. Your kids are not gonna give you that ultimate happiness. Your parents will never give you that happiness, your partners will never give you that happiness, your relatives are not going to give you happiness, no one will give you happiness. The only one person who can give you the ultimate non diminishing happiness is Krishna, and that can only be achieved through bhakti. There is a there is a verse in Bhagavad Gita. It says, "Bhaktya mam abhijanati yavan yaschashmi tatvata ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम." भगवान कहते हैं, ओनली पर्सन हु कैन नो मी. सो फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर फॉर मी टू लव कृष्णा, आई नीड टू नो कृष्णा. विदाउट नोइंग समवन हाउ कैन वी लव, है ना? सो इन ऑर्डर फॉर मी टू नो, हु कैन नो? कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली डिवोटीज कैन नो मी. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स भगवान के बारे में तो सारा भगवत गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में सब कुछ लिखा हुआ है. एनीबडी कैन रीड इट, बट दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट until they develop bhakti. क्योंकि there are so many scholars, they have read Srimad Bhagavatam, they have read Bhagavad Gita, they have commented on it, but they are not purified because, and they will never understand Krishna because Krishna cannot be understood by mental speculation. Krishna can only, mental prowess आपकी अच्छी होगी, you cannot know Krishna. The only way you can know Krishna is through bhakti, because who is saying that? Him, the person जिसकी हम बात कर रहे हैं, he is saying that भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई जान ही नहीं सकता उनको. Only devotees can know. And the reason why these scriptures are called revealed scriptures, they are not understood scripture, they are revealed scripture. That means when you read them, like आप लोगों में से मैंने जितने, अब मैं शायद मितुल प्रभु आपसे भी बात कर रहा था ना लास्ट टाइम, आपने बोला था whenever you read Bhagavad Gita, it will give you a different meaning. Like it will give you, क्योंकि जब भी आप उसको पढ़ रहे हो, whatever stage of your life progress you are in, you will get that kind of a answer from Bhagavad Gita. When you read it again, you have grown up here. When you read it, you will get an answer which is for of that level. That's why these scriptures are not ordinary and they are not static. Extremely dynamic, extremely dynamic. कोई मुझे पूछ रहा था, how deep is it? मैंने कहा, Srila Prabhupada used to say, when you understand, when you, the day you can say that you know Srimad Bhagavatam, when you understand that you know nothing. Because the more you know, the more you realize how much you don't know. And that's why a lot of these big, massive, amazing devotees, वो क्या बोलते हैं अपने आप के लिए? They say, I am the fool number one. And they're not being falsely humble. They are actually genuinely mean it. Because उनको पता है कि मेरे को कितना नहीं पता है. लेकिन हमारे साथ क्या है? आई नो भगवद गीता, रेड इट भगवद गीता, बहुत बार पढ़ी है जी. आप पूछो, आपको क्या पूछना है, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ आपको. आई टेल यू. क्यों? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट भगवद गीता. इफ आई न्यू अबाउट भगवद गीता, आई कैन नेवर से दैट. I the first thing people will have is humility. When you have understood Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, the first thing people will have is humility. If I don't have humility, that means I have not scratched even the surface. So Richa Mataji, the thing is, it's not about doing the right thing always. It's about being on the right path always. कई बार क्या होता है, इन ऑर्डर, कई बार क्या होता है हमारे पास, जब हमने जीपीएस में डाला सिटी जाना
हम लोगों को कई बार वो बोलता है ना, डी टूर करना पड़ेगा. What is that detour? That detour is not a problem unless you taking that detour to go back to the main जहां से पर आपको पहुंचना है. अगर आपको डिटूर मिल रहा है और वो डिटूर आपने डिटूर करा और कहीं और चले गए, आपने अपना जीपीएस बंद कर दिया, देन इट्स ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिटूर्स. प्रॉब्लम इज closing down the GPS. That is a problem. So once all we have to understand is, am I on the right path? Am I doing the right thing? And right thing मतलब am I on the right path? क्योंकि क्या होता है, when the plane starts from here to go to I'll give you example. यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से प्लेन निकला and it is going to चेन्नई. ठीक है. every half an hour, every 45 minutes they do course correction. आपको पता है अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं करें तो इसकी जगह, चेन्नई की जगह, द प्लेन विल लैंड इन दुबई. Oh wow. इतना डिफरेंस आ जाता है. दे हैव टू डू कोर्स करेक्शन. द रीजन इज बिकॉज द प्लेन इज डिजाइंड इन अ वे, उसका जो ऑटो सिस्टम बनाया है, डिजाइन इन अ वे दैट इट विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज द गोल. मेरे को चेन्नई उतरना है तो मुझे चेन्नई ही उतरना है, एंड तक उसके में एक ही फीडर रहता है, चेन्नई. लेकिन हमारे पास क्या है, घर से निकले थे, जाना था जापान, पहुंच गए चीन. We all are like that. We our life is like that. We live our life like that कि आज कुछ और गोल है, कल कुछ और है. आज तो मैं सबकी ऐसी ऐसी कर दूंगा ना. I will not listen to my wife. I'm not listening to my husband. I'm not gonna listen to my friends. And next day, those are your best people. Then I will never go through this path. And then following day, you going on that path. Because हमारे साथ क्या है? We don't have a stable goal. We don't have goals. And if you don't have goal, how can you do course correction? किसी को अपना गोल नहीं पता है, हाउ कैन यू डू गोल करेक्शन, कोर्स करेक्शन? आपको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, हाउ कैन यू डू गोल कोर्स करेक्शन? कोर्स करेक्शन इज वैलिड व्हेन वी नो वेयर वी आर हेडिंग. And that is why bhakti, the path of bhakti is so sublime and so amazing that more and more you get into this, more and more you realize this is the only path. There is a verse in Bhagavad Gita, भगवान कहते हैं, what was the verse? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हु कुरु नंदना, बहु शाखा ही अनंतश्चय बुद्धियो व्यवसायिनो. भगवान कहते हैं अर्जुन को, you need to have one pointed attention, because what he's saying is you need to know, first of all you need to know what is your goal, and second you need to know that you will never deviate from that goal. If you have 5 goals, like सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी इस पेपर को नहीं जला सकती है, लेकिन उसी सूरज की रोशनी को अगर मैं लेंस के उससे करूंगा तो ये पेपर जलेगा. Because Hmm. why? Because there is a focus in there. So the only thing that we need to work on, is my focus, am I is my focus the right focus? Is my goal the right goal? And am I on the right path? Suppose हाँ ठीक है, मेरा गोल है, मेरा गोल था कि आई नीड टू गो टू सिटी. ठीक है, बट मैंने बैलोरेट की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया. कैन आई गेट टू द सिटी? नो, आई कांट. गोल पता होना जरूरी, सिर्फ गोल पता होना जरूरी नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, एम आई ऑन द राइट पाथ एज वेल. भगवत धाम जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं. एक ऐसे पकड़ने का कान और एक ऐसे पकड़ने का कान, है ना. ऐसे पकड़ने का कान कौन सा है? सारा का सारा चीजें, योगा, ना, योगा, वो क्या बोलते हैं, बुद्धि योगा, सर भैया, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, ये योगा, वो योगा, कर्म योगा. लेकिन ये वाला तरीका क्या है? भक्ति योगा, सिंपल. बट द थिंग इज, वाई ऐसे कान क्यों पकड़ना है आपको? ये ऐसे पकड़ो ना, सीधा सीधा. It is taking straight. And the problem with this is, when you get into any other yoga, when you ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, कर्म योगा, उसमें क्या होता है? There are so many distractions. You can get detour and you will never be able to. Um, a participant has asked you to start meeting questions. Okay, you can start meeting questions. Um, so what I was saying, so we need to make sure, Richa Mataji, I'm so sorry it's taking so long, but the idea is that it's not. Explaining it very well, actually. Yeah, you got it, na? Okay. No, that's a very good answer. आप continue. Cool. So now, यहाँ पर क्या हो रहा है? Let's get back to what we were doing in this one. इसमें क्या था? The
नॉर्मल में बोर्डम आ जाता है, अटैच और डिटैचमेंट हो जाता है अगर हम कोई चीज रोज देखते हैं, लेकिन भक्ति में व्हेन इट कम्स टू कृष्णा एंड भक्ति, इट्स नव यौवनम चा, हमेशा भगवान तो ऐसे सुंदरी, हर बार अरे और सुंदर दिखते हैं, और सुंदर दिखते हैं, और सुंदर दिखते हैं, है ना। अब कृष्णा नाम, नाम कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव पार्शली अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, किसी भी लेवल पे अट्रैक्टिव, है ना। एंड शिला प्रभुपाद इसमें परपट में क्या बोलते हैं, कृष्णा नेवर फॉल्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ही विल नेवर एवर 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 लीव यू ऑन योर ओन। यार जब हम लोग ना, जो पॉटी में जो कीड़ा होता है ना, जब हम वो बने थे ना, तब भी भगवान हमारे साथ एज ए परमात्मा आए थे। दिस इज हाउ मर्सीफुल, दिस इज हाउ कंपैशनेट ही इज। ही डजन लीव एनी वन, ही डजन लीव इवन ए मस्कीटो। किसी को नहीं छोड़ते हैं भगवान की, भैया तू मेरे लिए कम, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए कम है। लेकिन हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आजकल के मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि वट एवर इज ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, ही इज मेरे माई फेवरेट। हु एवर हैज मोर नेम, मोर फेम, मोर पैसा, दैट्स माई फेवरेट। भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट इज वाई he never falls, but that means he will never leave you on your own, कभी भी नहीं। पूरी दुनिया हर कोई साथ छोड़ सकता है सिवाय इसके, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड इनफेलेबल, है ना। एंड ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज फुली स्पिरिचुअल। हमारे साथ क्या है, हमारे पास हम जीव तो, हमारे जो आत्मा है, जो हम आत्मा है, वो तो हम स्पिरिचुअल ही हैं, लेकिन हम किस में घिरे पड़े हैं, ये मटेरियल बॉडी में। भगवान की जो बॉडी है वो भी स्पिरिचुअल है। भगवान डज नॉट हैव एनी, एंड दैट इज व्हाई ही इज सो अट्रैक्टिव, है ना। एंड दूसरी चीज, यहां पर सब लोग क्या कर रहे हैं, दृशो दृशो, दृशो का मतलब होता है दर्शन, है ना। अब जो दर्शन होता है, दर्शन इज एक्चुअली रिलेशनशिप, ठीक है। अब जैसे हम लोग रोज हमारे ग्रुप में वो आते हैं, भगवान के दर्शन आते हैं, मंदिर के टेम्पल की फोटोज आती है, यू शुड लुक एट इट एंड relish it, because when you taking that darshan, you are increasing your relationship with Krishna, है ना। and when you do that every single day, he will reveal more and more things of him, and that is why, that is how we can actually start thinking of Krishna as these people from Mathura, they are Dwaraka, they are waiting for Krishna, and Krishna is so beautiful for them, for us हाँ ठीक है ना यार, पिंक पगड़ी है आज, रेड नहीं है, ठीक है, सेम ही लगते हैं, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतनी सारी लेयर आ गई हमारी आंखों के आगे, वी कैन नॉट सी द ब्यूटी ऑफ कृष्णा एट दैट मोमेंट। Krishna does not look, if Krishna is not looking beautiful, it's not the problem of Krishna, it's a problem in our eyes, because we have lot of layers of anartha sitting on it, you know. So so now, अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, इफ यू एवर गेट बोर्ड ऑफ कृष्णा, है ना, अगर आपको लगता है मंदिर जाने में बोरियत हो रही है, यू नीड टू डू समथिंग, क्योंकि इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मटीरियल लेयर्स ऑन योर कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग। अगर आपको चैंटिंग करने में बोर्डम हो रहा है, दैट मीन्स देर इज डेफिनेटली यू नीड, इफ चैंटिंग करने में मन नहीं लग रहा है, देन यू नीड टू चैंट मोर। 16 राउंड में आपका मन नहीं लग रहा है, इंक्रीज द राउंड टू 17, क्योंकि इफ यू गिव योर माइंड वट एवर ही वॉन्ट, देन माइंड विल बी अगेंस्ट अस, है ना। सो नाउ अब पर्सनल, आपका पर्सनल ये भी देखना कि हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट कैप्टिवेटेड बाय कृष्णा, ये भी ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर, थिंक अबाउट पास्ट में कभी आप ऐसा हुआ है कि, अब मेरे को याद है एक बार मैं वृंदावन में था, ओनली वंस इट हैपन, जैसे ही मंगल सॉरी दर्शन आरती के पट खुले, आई कुड फील दैट एनर्जी हिटिंग मी, बूम। और रॉक्सी मेरे साथ थी, एंड शी डजंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस, शी कॉल्स देम डॉल्स, शी कॉल्स, ओ टुडे डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ऐसे बोलती हो। अब मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता, मैंने कहा ओके तूने ब्यूटीफुल बोला, तेरे को वैसी स्वीकृति मिल गई। बट एनीवे, सो शी एक्चुअली सेड, डिड यू फील दैट? मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा डिड यू फील दैट एज वेल? यस। दैट्स इट, दैट इज द पावर, दिस इज द पावर, इट हिट यू लाइक, ऐसा लगा जैसे पूरा एक बूम करके एक एनर्जी आई, लगी बूश, एंड यू फील सो हैप्पी इंस्टेंटली। मैंने कहा व्हाट द हेल वाज दैट? रॉक्सी बोली व्हाट वाज दैट, डिड यू फील इट? मैंने कहा हाँ। एंड आई विल, ये हुआ था 2015 में आई थिंक, बट आई विल नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज
That moment I realized, नहीं नहीं, ये जो जो मुझे दिख रहा है ना पत्थर की मूर्ति, और ये इट्स नथिंग, इज समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन इन हियर. And the only way we can go deeper into this is when we chant more, because chanting will purify us, will get rid of. अगर मेरे चश्मे में बहुत ज़्यादा धूल लगी है, I can't see ना. So how do I need to clean this? I have a cloth to clean my glasses. Similarly, the cloth to clean our glass eyes is Hare Krishna Mahamantra. When you chant the Hare Krishna Mahamantra slowly and gradually, all these anarthas will be removed, and we can see the Shri Krishna, and we will see and we will fall in love with Krishna every single minute. And more we look at him, more and more we feel ecstasy, and more we go deeper into love with him. And that's when you realize, you know what? Yes, I am doing my course correction. I'm not going, जाना था जापान, पहुंच गए चीन नहीं जा रहा हूं मैं, है ना? So we'll stop here. Anybody has any comments, any questions? I think we took some questions in the middle, which was really good, क्योंकि question से discussion काफी deep में जाता है. So thank you for asking all those questions. Anybody has any other questions, comments, realization? We have a minute or so. Okay, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की. थैंक यू प्रभु जी. Thank हरे you, Thank you so Prabhu. much, कृष्ण, Prabhu Hare ji. Hare Krishna, Krishna. Prabhu. हरे कृष्ण, Hare हरे Krishna. हरे Hare कृष्ण Krishna. प्रभु. हरे Hare कृष्ण.